So far we have defined longitudinal stress. Longitudinal stress was F upon A. When you apply this force F, because of F, and its length is L, and cross-sectional area of the wire is what? A. Because of this force, wire, let's say its length increases by this much. This is delta L. At equilibrium, you found that you start with F. At equilibrium, this is F. At equilibrium, this internal force will also be equal to what? Right at this point, there is no internal force. This is natural length. After delta L deformation, this is the equilibrium point. अभी और ऊपर नीचे नहीं जा रहा है. External should be equal to internal. In stress, we always go for internal restoring force, which is F. This delta L upon L is called longitudinal strain. And is represented by epsilon. This symbol, have you ever seen the symbol? Coulomb's force. K times Q1 Q2 upon R square, right? Yes, sir. K का open form देखा 1 upon 4 pi epsilon. That's epsilon. कोई नहीं, kind of E for you. This is shape of banana. This is called epsilon. Right on the heading longitudinal strain, draw the structure and then we'll write a few lines. ये तो सुना होगा सिग्मा. Yes, sir. ये सब K है. बताइए. Right on this. When longitudinal stress acts on an object, when longitudinal stress acts on an object, longitudinal strain develops inside the material. Longitudinal strain develops inside the material. Which is given by change in length per unit length. Which is given by change in length per unit length. दिख रहा है डेल्टा L upon L का मतलब क्या होगा? Change in length per unit length. Now write on Young's modulus. Young's modulus.
what this guy Young found, Thomas Young. इजिप्शियन पिरामिड्स और ऑल देखे फोटो में, उनकी वॉल्स पर फोटोग्राफ्स बने होते हैं, दे आर कॉल्ड हायरोग्लिफ्स, जो इजिप्शियन स्क्रिप्ट थी। उस हायरोग्लिफ्स को डेसिफर करने में इस आदमी का कॉन्ट्रीब्यूशन था। या नेक्स्ट 12th में वेव्स अब करेंगे, वेव्स को डिफाइन करने में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। And he was a good physician also. Language, maths, physics, and everything. Just like you. जैसे आप लोग हैं, सारी चीजें आप करते हो ना। What he found? He found that when you go for ratio of longitudinal stress and longitudinal strain, then this ratio was coming a constant. और फिर होता है जब बहुत सारी चीजें कांस्टेंट आने लगती है तो हम कांस्टेंट्स को हम क्या दे देते हैं, कुछ नाम। This constant is called what? Y, and this Y is called Young's modulus. What type of stress you are talking about? Longitudinal stress and longitudinal strain. Write down the statement first. It is found that ratio of longitudinal stress and longitudinal strain is a constant. This constant is called Young's modulus. This constant is called Young's modulus. इधर देखना, अगर हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो यंग्स मॉड्यूलस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? गुड। लोग यहाँ देखते हैं स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, इज अ कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। स्ट्रेस बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? फोर्स बढ़ाओगे तो लेंथ का चेंज भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। This ratio will remain up, and that constant is called Young's modulus. Young's modulus depends on type of material and its temperature. Young's modulus depends on the type of material and its temperature. It is independent of stress and strain. It is independent of stress and strain. Stress बढ़ाओगे, strain उसी रेशियो में क्या होगा? इंक्रीज होगा। When you say stress upon strain is a constant, basically you are saying that stress is directly proportional to strain. Just as a note, you can mention this. Stress is directly proportional to strain. कितने लोग अपने लॉजिक से बता सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होना चाहिए? What do you think? Look at the shape and then decide yourself कि हमें रटने की जरूरत नहीं। स्ट्रेस क्या है भाई तेरा? F upon स्ट्रेन क्या है? डेल्टा L upon the whole thing is what? अभी एक तरह से इतना लिखा हुआ है तेरा
F divided by into jump. क्या आप ये फील कर सकते हो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस वायर को डिफॉर्म करना इजी हो जाएगा। तो अगर आप T इंक्रीज करोगे तो आप डेल्टा L कैसा प्रोड्यूस करोगे ज्यादा। If you are going to increase delta L, then your Young's modulus will basically Young's modulus tells you what? How easy or difficult it is to deform an object. Greater the value of Young's modulus, difficult it will be to deform that object. ये जितना ज्यादा होगा डेल्टा L उतना क्या होगा कम। जितना ज्यादा Young's modulus है किसी ऑब्जेक्ट का इसका मतलब है आप उसे डिफॉर्म नहीं कर पाते। Write down this. Greater the value of Young's modulus, greater the value of Young's modulus, difficult it is to deform it. Difficult it is to deform it. इसको इस तरह से अलग से डिफाइन करो। With the statement write down this Young's modulus FL A delta L. क्या बोला मैंने? Greater the value of Young's modulus, difficult it is to deform. अभी टेम्परेचर वाला पॉइंट भी नोट कर लो एज अ डायरेक्ट पॉइंट तो भी सामने देखिएगा ऐसे as a point if temperature is increased it is easier to produce deformation. It is easier to produce deformation which means Young's modulus decreases. Which means Young's modulus decreases. निकालने क्लियर। ना अब कुछ अच्छी चीजें करते हैं। ये सब तो किसी भी बुक में कहीं भी कोई भी बता देगा। स्ट्रेस बॉन्ड स्ट्रेन क्या होता है? यंग्स मॉडुलस। ये तो बच्चा कर सकता है। ये वाला एग्जाम्पल भी हर आदमी कर सकता है। वायर है अपने पास, लेंथ इज L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, यंग्स मॉडुलस Y, और हमने इसके एंड पर एक वेट हैंग कर दिया और मास M. सिंपल स्कूल लेवल प्रोफाइल दे आस्क यू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा L. कितने लोगों को समझ में आता है? एक लाइन का क्वेश्चन है। Replace F with what? mg. Yes, sir. F का काम कौन है? तो अपने हाथ से पकड़ कर खींच। उसकी जगह हमने क्या यूज कर दिया? M. ये कितना वेट प्रोड्यूस करेगा? mg. This M, force which it produces mg is nothing but external force F. और इक्विलिब्रियम पर जितना F नीचे लग रहा होगा उतना ही वायर के अंदर इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगा? F. इस F की जगह पर क्या रख देना उठाकर? क्या मिल जाएगा तुमको? ये स्कूल लेवल प्रोफाइल समझ में आता है इतना? Write down this. Find out change in the length.
Find out change in the length of the wire when a mass of M is hanged at the free end. Find out change in the length of the wire when a mass of M is hanged at the free end. This is something which everyone can solve. अब वहाँ चलते हैं which no one can solve. कर लोगे भाई F की वैल्यू पुट कर देना डेल्टा फाइंड हो जाएगा कुछ खास नहीं है इधर. Let's go for the second situation. The second situation is this. Hold up. Wire. Length L, cross-sectional area A, Young's modulus is what? And mass of the wire is what? M. And there is no extra load. Deformation is due to its own weight. यहाँ पर इसका मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, इसलिए डिफॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ? इस एंड की वजह से. इमेजिन कि आप एक बार को पकड़ के लटक जाओ, आपकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी ना, आपके पैरों में कुछ भी लटका हुआ है, आपने खुद के वेट की वजह से आपकी लेंथ क्या हो गई है? इंक्रीज. द क्वेश्चन इज there's a rod of length L, cross-sectional area A, Young's modulus Y, and its mass is what? M. Find out change in the length due to its own weight. ये तो easy था, ये भी easy है लेकिन थोड़ा अलग है. Write down the question first. Rod of mass M, rod of mass M is hanged vertically. Find out change in its length due to its own weight. Find out change in its length due to its own weight. Now, पहले डिफरेंस सीखना क्या है यहां और यहां में. बोर्ड पर कितने लोगों को समझ में आता है कि यहां पर what is stress at this point? Stress mg upon 8, यहां पर mg upon 8, यहां पर क्या आपको समझ में आता है? यहां पर स्ट्रेस 0 है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस यहाँ फील होगा. For this wire, stress is uniform throughout. What is that? mg divided by ag. But for this wire, this point means maximum stress. That means different cross sections are under different stress forces. अगर अलग-अलग स्ट्रेस है तो भाई अलग-अलग क्या आएगा? स्ट्रेन. यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग. Can you see a continuous system? When you see a continuous system, you go for what? Conflict. अब बोल क्या बोल रही थी? बोल रहा हूँ. लेकिन ये अलग है. You cannot replace F with mg this time. Write down this first hint. In previous figure, in previous question,
stress was constant throughout the wire. In the previous question, stress was constant throughout the wire. But this time, stress is not uniform. It increases as we move towards the suspension point. It increases as we move towards the point of suspension. कोई रटने वाला पॉइंट नहीं समझ में आता होगा इतना कि आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहाँ फील होगा अगर आप लटके हुए हो हाथ तो ये रहे आपके हाथ। अब ये इंटीग्रेशन आपसे होगा नहीं, मैं उसकी शक्ल बना दे रहा हूं पहले, फिर आपसे हो जाएगा। क्या करना है सीखना। बोर्ड पर देखना नहीं तो हमने यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस मूव किया, उस x के बाद हमने यहां पर एक छोटा सा ये पोर्शन कट किया। इस छोटे पोर्शन की लेंथ कितनी है? Who can tell me what is the stress on dx? कितने लोगों को समझ में आता है इस dx पर जो स्ट्रेस होगा वो x वाली लेंथ की वजह से होगा, l माइनस x की वजह से नहीं होगा। इसे कौन खींच रहा है? ये वाला पोर्शन समझ में आता है? यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? कितने लोगों को ये समझ में आया? इसका मास है। What is mass for length L? For unit length? What is this length? X. What is mass for length X? X times m divided by आगे से इस तरह की चीजों को फास्ट क्या करेंगे? This is kind of lambda x. So lambda is called mass per unit length. जो m by l है इसको फिर शॉर्ट में क्या बोल दिया? Lambda. What is lambda? Mass per unit length. मैंने बोला 1 मीटर का मास 5 kg है तो 2 मीटर का क्या होगा? 2 into 5. 3 का क्या होगा? 3 into 5. x का क्या होगा? Multiplied by what? g. और ये चीज क्या बन गई? डिवाइड बाय क्या बन गया? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय dl डिवाइडेड बाय dl। देखना डिवाइडेड बाय dl डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी है? l। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? l नहीं है। किसके स्ट्रेस को डेवलप किया तुमने? dx को कौन खींच रहा था? ये dx को इसने खींचा और dx की लेंथ बढ़कर कितनी हो गई? dl divided by the ratio is equal to what? Young's modulus। भाई ये स्ट्रेस लिखा हुआ दिख रहा है? divided by strain is equal to what? क्या फाइंड करना है? इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? What is dl? What is dl? Change in the length of which portion? इसका निकाल, फिर इसका निकाल, फिर इसका निकाल, फिर इसका निकाल, यहां से लेके यहां तक के सारे के सारे dl निकालो और उनको क्या कर दो? dl का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? l नहीं, क्या बनेगा? l का मतलब क्या था? ओरिजिनल लेंथ। dl का मतलब क्या है? चेंज इन लेंथ। change in length plus change in length plus change in length is what? Big change in length.
डीएल का इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है, समझ में आया क्या बोला हुआ है यहाँ पर? डीएल का इंटीग्रेशन वही होता है जो आप सोच रहे हो एल, लेकिन कंफ्यूजन ना हो क्योंकि यहाँ एल का मतलब क्या है, ओरिजिनल लेंथ। मैंने यहाँ पर ये बोला जब मैंने इसको 10 रुपीज दिए, थोड़ी देर बाद मैंने इसको 11 रुपीज दिए, थोड़ी देर बाद मैंने इसको 13 रुपीज दिए, ऐसे ही। उसके बाद आपने चेक किया कितना पैसा चेंज हुआ, व्हाट इज द चेंज इन मनी, तो आप कैसे काउंट करते? 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14। जब सबको ऐड करते तो तुम्हें क्या मिलता? टोटल चेंज इन द मनी। जो पैसा इसके पास है वो नहीं मिलता, क्योंकि मान लो इसके पास पहले से 1000 रुपीज है और मैंने इसे 10 रुपीज दिया, चेंज कितना हुआ? 10। पैसा कितना है इस पर? 1010। समझ में आया? तो डीएल का मतलब क्या है? स्मॉल चेंज इन लेंथ। इंटीग्रेशन मतलब प्लस स्मॉल चेंज इन लेंथ प्लस स्मॉल चेंज इन लेंथ, दैट विल गिव यू व्हाट? बिग चेंज और टोटल चेंज इन द लेंथ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड आउट दैट ओनली। इसे इंटीग्रेट करना है। इधर कितने लोगों को दिख रहा है कि ये dx यहां से उठ के ऊपर चला जाएगा, जैसे ही dx ऊपर जाएगा किसके साथ ग्रुप हो जाएगा? x dx का इंटीग्रेशन बच्चे को पता है? अब कुछ नहीं बचा। दिस इज कॉल्ड नाउ मजदूरी, वो आप कर ही लेते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? फिजिक्स एक बार फिर से सुन लेना इधर। डिफरेंट small portions will experience different stresses। इसलिए अपने को किसी रैंडम पोजीशन पर निकालकर इस पूरी कहानी को क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन में क्या आएगी? लिमिट किसकी? x पे dx को इंटीग्रेट करोगे ना, x की यहां पर वैल्यू कितनी होगी? 0, और यहां क्या हो जाएगी? l। लोअर लिमिट अपर लिमिट, find the answer। डिवाइड करने के जो स्टेप्स हैं भाई ये याद रहेंगे। पहले मैंने ये हमने x लेंथ बोली, फिर उसका मास इनटू g क्या क्या बन गया? वेट। फिर उसको ऐसे क्या किया? डिवाइड। ये पूरा पार्ट क्या है? स्ट्रेस divided by string, ये लिखा हुआ है। इससे हुआ भाई इंटीग्रेशन। यार ये भी मुझे ही करना पड़ेगा, आपसे इंटीग्रेशन भी नहीं हो सकता भाई। से कुछ हो सकता है या नहीं बताना भाई मेरे को। dx की वैल्यू क्या लिखी हुई है? dx लिखा हुआ है तुम्हारा गामा मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय क्या फाइंड करना है? dl फाइंड करना है, और मूविंग dl to this side, move dl to this side, and on that side you've got what? m g l a Young's modulus, m g l a Young's modulus multiplied by x dx, integration of this. Lower limit of x is 0, upper limit of x is l. Integration of dl is going to give you delta l, which is coming mg upon l a y. X is what? X square by 2, 0 to l. इधर ऐसे गए, इधर आ गए, इधर चले जाते हैं, और पास कर देते हैं भाई। अपर लिमिट पुट कर दोगे, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? 0। पास कर रहे हैं, एल स्क्वायर दिख रहा है? एल स्क्वायर एल क्या हो गया? ये आ गया तेरा एम जी एल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए वाई। समझ में आया? इधर पुट कर
हमारे लिए अब ये रिजल्ट है। अगर इसका पूरा वेट लगा देते यहाँ पर, जब पूरा वेट लगाया था आंसर क्या आया था, पूरा का पूरा एम यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पर था, तब देखो डेल्टा एल कितना आया था, ये लिखा हुआ एम जी एल अपॉन ए वाई। अगर पूरा वेट एक जगह ना होकर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप क्या करो, एवरेज ले लो। एम जी का एवरेज क्या हो गया, एम जी बाय 2 एज अ ट्रिक है। इसी का आया था इतना only 1, मतलब यहां से आप यहां नहीं पहुंच पाए। कोशिश करना कि आप मुझे बता पाओगे सर, हम ऐसा इसलिए नहीं कर पाते। अब क्लास में अगर नहीं बताना चाहो तो क्लास के बाहर तो सब लोग चले जाएं तो मुझे बताना, इस हमसे ये इसलिए नहीं हो पाता, मुझे मालूम पड़ना चाहिए। और अगर कोई जेन्युइन रीजन होगा तो मैं आपकी हेल्प भी करूंगा, वरना तो इसमें कुछ था ही नहीं। डीएल चाहिए था, उसको यहां लेकर आए, वाई को नीचे लेकर चले गए, सिंपल कैलकुलेशन दी, इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स पुट कर दी। Now remember the whole thing as a result also. Answer this. Hello. देखते ही आंसर आना चाहिए बॉस। Find out delta L. इस बार वायर का वेट भी है और एंड पर भी लगा हुआ। इतना टाइम नहीं है आपके पास, कितने लोगों को समझ में आया ये डेल्टा एल केस 1 डेल्टा एल केस 2? केवल एम अगर रैंक करके फर्स्ट केस, उस फर्स्ट केस में डिफॉर्मेशन क्या था, एम जी एल डिवाइडेड बाय। सेकंड केस में खुद का वेट अगर काम करेंगे तो आंसर क्या होगा, एम जी एल डिवाइडेड बाय आंसर। दोनों केसेस को हमने क्या कर देना है, सुपर इम्पोज, एक के ऊपर दूसरा केस सुपर इम्पोज, दैट्स द आंसर। Both are present, then superimpose both results. Delta L1 plus delta L2. ऐसा क्यों होता है उसको भी समझ लो, केवल नोट आंसर वही है, प्रेजेंटेशन देख लो। कौन बताएगा इस केस में स्ट्रेस क्या होता, अगर आप कहां पर जाते, क्या चूज करते, dx, इस dx को ये मिलता ना यार, कोई x m l x m g y l, ये तो इतने पोर्शन का प्लस साथ में क्या होल डिवाइडेड बाय। जब इंटीग्रेट कर रहे होते, तो ये x के साथ प्लस mg दिखता आपको यहां पर, प्लस एम जी वाला टर्म समझ में आया क्या किया हमने, एक्स एम जी बाय एल, इस ए को बाहर कर देते हैं,
1/a समझाने के लिए a बाहर कर दिया a, और यहाँ पर कौन था, ये यहाँ डिनोमिनेटर में गया था, उसको भी शिफ्ट कर दिया। ये dx कहाँ गया, जब होकर ऊपर mgx/l प्लस mg इस पूरी चीज को किससे मल्टीप्लाई किया तुमने, तो इसको इंटीग्रेट करोगे, ये साथ तो एज इट इज चलेगा, साथ में कौन और आएगा, साथ में कौन आता, mg के साथ क्या लिखा है 1 के साथ कौन है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 to l की लिमिट लगेगी तो ये क्या बन जाता, समझ में आया, तो टर्म केवल क्या रह जाता तेरा mg, वो mg होने दो, ये करने की जरूरत नहीं है, अपने को क्या याद रखना है, अपने को केवल क्या याद रखना है, अगर सुनो हमें ये वाला केस याद रखना है, केस 1 स्कूल लेवल पर ही आएगा, स्कूल लेवल पर क्या सिचुएशन बनकर आएगी, you have got an extra load and the entire wire is kind of massless. If they give you this type of situation, then in that type of situation अपने को केवल क्या याद रखना होता है, Young's modulus क्या होता है, stress upon ये आपको याद रखना है, F क्या हुआ करता है mg, अगर एक्स्ट्रा लगाया हुआ है वायर की वजह से खुल जाएगा तो क्या कर देना होता है ये, और अगर दोनों है तो क्या करना होता है mg भी लेना होता है प्लस mg बाय इतनी कहानी क्लियर रहेगी, मेथड भी सामने है, ट्रिक भी समझा दी मैंने। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा मैंने, ये रहा वायर, मास कितना है m, लेंथ कितनी है l, क्रॉस सेक्शनल एरिया a, Young's modulus, and there is a force which is pulling this wire, the force is what, F, to find out change in the length। ये लास्ट क्लास में क्या याद है, लास्ट क्लास में इस F की वजह से अलग अलग जगह पर स्ट्रेस निकाला था, स्ट्रेस एज अ फंक्शन ऑफ x निकाला था लास्ट क्लास में, कराया कि नहीं कराया मैंने, दिखाना F एज अ फंक्शन ऑफ x करवाया, बताया भी था कि लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है। बोर्ड पर ये क्या हो रहा है देखना, जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हो, रेलवे प्लेटफॉर्म, और सामने एक मालगाड़ी खड़ी हुई है, जैसे ही उसका इंजन स्टार्ट होता है, क्या आपने देखा एक वेव टाइप की बनती है साउंड की, चेन का लिंक 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 एक एक करके क्या होते जाते हैं टाइट, इसका मतलब ट्रेन की एक तरह से लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस एफ की वजह से हर जगह पर क्या डेवलप होता जाएगा, स्ट्रेस। सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहाँ आएगा, सबसे कम कहाँ आएगा, लास्ट में। समझ में आ गया, फोर्स कौन है, एफ। You need to find change in length of this wire. Find out change in the length. इस बार वेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि वायर को हम कहाँ पुल कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। Because of the horizontal pull, find out change in the length. बोर्ड पर कितने लोगों को समझ में आया आंसर बताना। ना यंग्स मॉडुलस ही चलता है, ये बोर्ड पर आंसर। कैन यू फील कि ये जो चीज है,
तो ये वाला सेटअप है। जब वायर का खुद का वेट था, खुद के वेट की वजह से इस जगह पर कितना फोर्स लग रहा था? 0। सबसे ज्यादा कहां लग रहा था? यहां कितना लग रहा था भाई? mg। यहां कितना लग रहा था? 0। उस केस में जब डिफॉर्मेशन निकाला था तो mg के साथ केवल क्या डेवलप हो गया था? इस केस में यहां पर स्ट्रेस कितना है? f। अरे इस जगह को सबको खींचना है यार, और लास्ट वाले पॉइंट को किसको खींचना है? ये और ये एक ऐसी चीज है, कौन इंटीग्रेट करे? इस केस का आंसर क्या होगा? f/2। समझ में आ रहा है कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक के बाद एक आप रिजल्ट बनाकर डेवलप कर सकते हो? दिस इज इक्विवेलेंट टू दैट, सॉरी दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। बात एक ही। आप चाहते इधर, आप चाहते तो इसे इंटीग्रेट करके भी वही आता, अब करके देख लेना। If somebody is interested, go find tension force, integrate the whole thing and you will get the same value. Not time बर्बाद करें। If this type of thing is asked, method is in front of you. आप ये नहीं बोल सकते साहब ने मेथड नहीं बताया, केवल ट्रिक बताते हो आप। मेथड सामने, आप F से डिफरेंट पॉइंट पर टेंशन फाइंड कर लो। लेवल थोड़ा और बढ़ा दिया, इधर देखना है। अब क्या होगा भाई? What is change in length? तो यहाँ भी याद लगा दिया मैंने। Now क्या करें? क्या किया है? Let's see you can answer this. 3f and f. यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? 2fl upon u1. कैसे आया थोड़ा 2f? So total force will be 2f. टोटल फोर्स कितना? 2f। तो उसको डिवाइड भी तो करेगा 2 से। तेरा 2f बाई क्या आएगा? 2। इस तरह से तूने सोचा है, लेकिन आंसर 2f है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए मैंने तेरे से पूछा कि तेरा क्यों आया है 2f? सोच के आया है, तुक्के में आया है? तुक्के में आया है सर। सर 2f टोटल फोर्स रहेगा और फिर तेरा आर्गुमेंट यही ना कि 3f minus f is what 2f, which is equivalent to this. No sir, it will not be equivalent to this. Then it is equivalent to what? Sir, like in first case that we have taken out. In the first case, everywhere force was what? Same. Every cross section was under same stress. In case 1. In this situation, can you see that this is under maximum stress of 3f, and this one is f only. So your force is continuously changing. This cannot be. This is not equivalent to the first situation. This is equivalent to those situations where you have this type of thing. अब यहाँ पर आप क्या करते हो? लोग क्या करते हैं? 3f minus f divided by 2. मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक आंसर दे सकता हूं, लेकिन मेथड भी सिखा दूं। मेथड वही है, मेथड ही सिखा रहे हैं तो और अच्छा बना देते हैं। इधर देख, मेथड की कहानी आएगी तो अपन ये करेंगे। What is this? F1 and what is this? बिल्कुल जनरलाइज केस पे चलते हैं। आगे F1, पीछे F2। लास्ट क्लास के नोट्स में इस जगह पर स्ट्रेस निकाला था, याद है?
terms of F1 F2 अगर लिख आया था जोर से बोलना F1 times L minus x L minus x upon L plus F2 x upon L. plus F2 क्लास में किया था, याद आ गया? वेरीफाई करो ये था ना, x की वैल्यू 0 प्लस x की वैल्यू L सेम। मैं एक लाइन में प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन केवल इंटीग्रेशन दिखाने के लिए, केवल एक लाइन का मेथड सिखाऊंगा अगर मैं, तो वो कॉन्सेप्चुअल है। बोर्ड पर इधर देखना है बेटा, x के बाद हमने किस लेंथ का पोर्शन चूज किया? ये जो dx वाला हिस्सा है, इसको इस तरफ से कौन खींच रहा होगा? t, और इधर से कौन खींच रहा होगा? t प्लस dt। इधर देखना, परेशान नहीं करूंगी, देखना इधर। बोर्ड पर देखना, F1 F2 ये लेंथ कितनी है? x, ये लेंथ कितनी है? बीच में छोटा सा पोर्शन है, इस छोटे से पोर्शन की लेंथ कितनी है? dx। x डिस्टेंस पर टेंशन कितनी लगेगी? t। ये एक्शन है तो यहां क्या लगेगा? x से जब यहां पहुंचोगे तो इस जगह पर x नहीं होगा, इस जगह पर x क्या कहलाएगा? तो जब x था कोई चीज y थी, जब x प्लस dx है तो वो चीज क्या कहलाएगी? y प्लस dy। लेकिन t प्लस dt is approximately t only, dt is almost negligible। क्या आपको दिख रहा है कि ब्लू वाला एलिमेंट, अब इस पर जितना इधर फोर्स है उतना इधर है, इसका मतलब इस ब्लू वाले पोर्शन के लिए अगर कोई आपसे बोलता है स्ट्रेस कितना है, तो आप क्या बोलते? T/A, ये बोलते। चलो, इस पूरी रॉड के लिए स्ट्रेस डिफाइन नहीं है कि आपने बोल दिया इधर F1 इधर F2 है, क्या है स्ट्रेस पता ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेस कहां होगा? स्ट्रेस होगा एक गिवन क्रॉस सेक्शन पर। तो गिवन क्रॉस सेक्शन मतलब एक पतली सी लेयर कट की, पतली सी लेयर का मतलब क्या कट किया? उस dx को इधर से कौन खींचेगा? t। बहुत पतला है तो यहां पर भी ऑलमोस्ट टेंशन क्या रहेगी? t। when you are pulling something from both ends by t, ये तो फ्री बॉडी डायग्राम था ना, लास्ट क्लास में बताया था, स्ट्रेस कितना आ गया? T/A। इसके बाद कहानी है, देखना इधर, इसके बाद कहानी है यंग्स मॉड्यूलस y, f की जगह कौन है यहां पर? t डिवाइडेड बाय a। चेंज इन लेंथ कौन है? dl डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कौन है भाई? dx। इसके लिए बात हुई ना, इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है और इस स्ट्रेस की वजह से कितनी बढ़ने वाली है, फिर इस dl को अपने को क्या करना है? इंटीग्रेट। कैन यू इंटीग्रेट this function by putting the value of t? देखें कौन आंसर देता है, फिर आपको ट्रिक भी दिख जाएगा। जैसे आप इंटीग्रेट करोगे वैसे आपको ट्रिक दिखना शुरू हो जाएगी, फिर आपको आगे से कभी भी इस तरह का इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। थोड़ा फास्ट करना भाई इंटीग्रेशन, पूरी कैलकुलेशन मैंने कर दी आपके लिए। लोग लगता है हमसे नहीं हो पाएगा, वो यहाँ देखना, डीएल चाहिए
1/ay इसको बाहर रख, dx को यहाँ रख, t की वैल्यू उठा के पुट कर दे, here f1 l एल को भी बाहर ले लिया, नहीं दिख रहा है, एल को बाहर ले लिया, अगर एल को बाहर ले लिया तो फिर आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर f1 l है and then f2 minus f1 है, multiplied by x है, ये भी x है ना, ये भी x है, l बाहर आ गया, जरा ठीक है लिखा हुआ है, टेक x कॉमन f2 माइनस f1, इसका इंटीग्रेशन इजी पड़ेगा मेरे लिए, dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा रे, डेल्टा, यहां पर कौन कौन कांस्टेंट है तेरे पास, l a y, ये f1 l नहीं है, इस f1 l के साथ कौन है बॉस, इसलिए इंटीग्रेशन क्या बनेगा, f1 l और dx का इंटीग्रेशन x, dx का x की लिमिट 0 to l, सीधे सीधे l कर दिया भैया, आप तो टाइम बचा लेने दो, ये dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बनेगा x, उसकी लिमिट क्या बनेगी 0 to, क्या रह जाएगा, आगे कौन है बॉस, f2 माइनस साथ में कौन, x का इंटीग्रेशन लिमिट लगकर l स्क्वायर बाय, समझ में आ गया इतना, कितने लोगों को दिख गया कि आगे से अपन ये सब नहीं करेंगे, ये कर देंगे f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाय 2, अभी सब बकवास है, वही लिखा है, ये l स्क्वायर बाहर कर, l स्क्वायर बाहर ले गया, f1 बचा, और ये क्या लिखा हुआ है f2 माइनस f1 बाय, minus f1 by 2 and plus of f1, that gives you what, f1 by 2 plus f2 by 2, पूरा सामने। अब तेरा पॉइंट तुझे लगा था 3f minus f, that is giving you 2f, अब मेरा पॉइंट सुन, 3f plus f is what, 4f, its average is what, 2f, वो आ रहा है। Remember this, आगे से क्या करना है लोग, इधर आगे से क्या करना है, आगे से ये करना है, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन ये दिया था मैंने, इधर f लग रहा था, इधर कुछ भी नहीं था, अगर इधर f है इधर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब f प्लस कुछ भी नहीं डिवाइडेड बाय, and that's why it became what, f by 2, समझ में आ गया। तो कोई भी वायर दे रखा है, आपने क्या करना है, इधर कोई भी वायर दे रखा है बोर्ड पर, कितने लोगों को समझ में आया कि इस केस में ये किया था सबने, mg डिवाइडेड बाय 2, कितने लोगों को समझ में आया ये इस वाले केस का, इस जगह पर टेंशन, इस जगह का टेंशन फोर्स कितना है, और इसे किसे संभालना है, वायर के खुद के वेट को भी प्लस इसको भी ना, तो यहाँ का F1 तो ये हो गया, और यहाँ का F2 क्या हो गया, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय, चेक कर लो ये लिखा हुआ था उसमें भी, इसके साथ 2 था, क्वेश्चन क्या बन गया, for this type of cycle in Young's modulus formula replace F with what, average of this and this force, average आ जाएगा F1 plus F2 divided by 2, done। This is the final result which you need to remember. कोई भी आपसे बोले change in length, that's the result. बिल्कुल फर्स्ट एग्जाम्पल स्ट्रेस का, इधर से लगाया F,
डेल्टा एल फाइंड करना है, एफ की जगह क्या लेंगे, ट्रिक क्या बोल रही है, यहाँ क्या लग रहा है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या था, इधर भी एफ और इधर भी, जो हमारा एफ था वो क्या था, F1 प्लस डिवाइडेड बाय, इसलिए क्या आता है, क्या आपको दिख रहा है इस केस में तो हर जगह स्ट्रेस एफ ही रहेगा, इधर भी एफ, इधर भी एफ, इधर भी एफ, इधर भी एफ, वही बना हुआ है। तो कोई भी साइड हो, आपने क्या करना है, फाइंड आउट फोर्स ऑन दिस साइड, फाइंड आउट फोर्स ऑन दिस साइड, टेक द एवरेज, use this F in your formula of Young's modulus, F divided by A divided by delta L divided by change in length. This F, write down as average F1 plus F2, which in this case is this. This F is the F average. अब कोई भी क्वेश्चन आप इस तरह का हैंडल कर सकते हो। Put down the school level profile. There are two rods, one of aluminum and the other one is of copper. This is connected to a rigid end and this one is being pulled by a force of F. This is L, this is also L. Young's modulus is Y1 and Young's modulus is Y2. Find out change in length of the system. When you pull this thing by a force of F, what is the total change in length? They've got same cross sectional area. So we got cross sectional area क्या same. With a copper rod you welded aluminum rod, and then this aluminum rod is connected to a rigid support, and then free end of the copper rod is pulled by force F. What type of change in length we are looking into this figure? किसका स्ट्रेस ज्यादा है, aluminum का या copper का? It's given that Y1 is greater than Y2. Hello. Young's modulus of aluminum is more than that of copper. किसका स्ट्रेस ज्यादा है? सेम. तो यहाँ कितना लग रहा है? F. यहाँ भी कितना डेवलप होगा? एक के लिए एक्शन होगा, दूसरे के लिए लेकिन रहेगा तो F ही. इसलिए दोनों जगह पर F क्या है जरा? सेम. इतने लोगों को समझ में आया? F यहाँ पुट कर F, यहाँ पुट कर Y1, इसका निकाल डेल्टा L1, इसका निकाल डेल्टा L2 और दोनों को क्या कर दे? ऐड. टोटल निकल है. तो ये पूरा फिगर है किसके इक्वल है? आपने एल्यूमिनियम को अलग से खींचा, कॉपर को अलग से खींचा, दोनों को एक साथ कनेक्ट करके सामने वाले को दे दिया. तो फिर क्वेश्चन में कोई बचा थोड़ी यार, ऐसे देख रहा हूं मेरी तरफ क्या बता रहे हो जरा. Y1 फोर्स कितना? F. एरिया A. चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इसका Young's modulus. Force stress is same, change in length delta L2 divided by this. Question क्या पूछ रहा है? Find out delta L. That will be delta L1 plus delta L2.
Next school level question is on. Next school level question here. We have a cuboid. The cuboid has side lengths of 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. एक बार ऐसे खींचो, एक बार ऐसे खींचो, एक बार ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, समझ में आ गया होगा? तीन ही तरीके. Find out delta 1, delta L1 is to delta L2 is to delta L3. Can you see there are three ways you can deform this room? इस वाले क्रॉस सेक्शन पर फोर्स लगाओ, या ऐसे लगा लो, या ऐसे लगा लो. साइड लेंथ क्या दिए मैंने? 1, 2, 3. Arrange deltas in the increasing order. That's what the question is. Write down the question. Cuboid of side length 1, 2, 3. Cuboid of side length 1, 2, 3 is pulled by same force F for 3 different arrangements. For 3 different arrangements. Perpendicular to the respective cross sections. Find out delta L1 is to delta L2 is to delta L3. टाइम नहीं है अपने पास, इसलिए कितने लोग हैं जो बोर्ड पर देखकर आंसर दे सकते हैं? क्या पूछा है भाई? डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या है? F डिवाइडेड बाय A इनटू यंग्स होल पर. कितने लोगों को दिख रहा है कि सिंस क्वेश्चन इज लुकिंग फॉर रेशियो, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन व्हाट? L अपॉन. हर केस में F क्या लगाया है? मटेरियल भी क्या है? इसका मतलब केवल L अपॉन Y का कॉन्सेप्ट चाहिए. अगर L अपॉन Y का कॉन्सेप्ट चाहिए 1, 2 अंदर की डेफ समझ में आया? डॉट F फिगर समझ में आ गया? कौन सा क्रॉस सेक्शन दिख रहा है तुमको? 1 एंड बाहर की तरफ कौन खींच रहा है? F. इधर से भी कौन खींच रहा होगा? F. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इस केस में A है तेरा 2 और L है तेरी 3. अरे लेंथ अंदर जाओगे ना यार, लेंथ कितनी मिलेगी तेरे को? 3. और क्रॉस सेक्शन कितना मिलेगा? 1 into 2. एक बार तुमको L कितना मिलेगा? 3. और A क्या मिलेगा? 1 into 2. एक बार तुमको L क्या मिलेगा? 2. और A क्या मिलेगा? एक बार तुमको A क्या मिलेगा? L क्या मिलेगा? 1. और A क्या मिलेगा? अरेंज कर लेना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी. क्या तीनों फिगर बनवाओगे क्या? समझ में आ गया होगा भाई? एक बार मैंने ऐसे किया, एरिया कितना है तेरा? 1 into 2. लेंथ कितनी है? 3. एक बार ऐसे पकड़ ले, 3 into 1 तो अंदर की लेंथ क्या रह जाएगी? 2. These are different combinations. इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या बन जाएगा? ये 3/2 आ रहा है, ये कितना आ रहा है तेरा? 2/3 और ये क्या आ रहा है तेरा? 1/6. ये हो गया तेरा इंक्रीजिंग ना लेना. लेट्स से डिक्रीजिंग बोल दे तो ये आ गया 3/2, 2/3, 1/6. कितने लोगों को दिख रहा है कि इट्स व्हाट ऑब्वियस कि ये 3 वाला कैसी मैक्स होता? इलॉन्गेशन किसके प्रोपोर्शनल है? L. इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो ज्यादा इलॉन्गेशन के लिए आप लेंथ क्या चाहोगे? ज्यादा. और क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या करना चाहोगे? फॉर द रस्टर आप ये लेंथ लेना चाहोगे और ये क्रॉस सेक्शन. इन दैट केस यू विल गेट मैक्सिमम.
इस वाले केस में आपको क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। That's in front of you. इस तरह के इजी प्रोफाइल्स हैंडल हो जाएंगे भाई स्ट्रेस एंड ऑल पर। अब चाहो तो अलग अलग फिगर बना लो भाई। इस केस का फिगर बन जाएगा ऐसा 1 3 and this length will be 2. इस केस का फिगर बन जाएगा 2 3 and the length will be 1. इस केस में हमारी जो लेंथ थी 3 बनाना क्यों कंप्लीट कर। There is a stress and strain curve which I'll explain in the next class. It will take time. अभी जरा shear strain को define, shear stress and bulk को define करते हैं पास. We'll discuss. We'll come back for longitudinal in the next lecture. अभी 5 मिनट में अपना shear और bulk से related कुछ चीजें हो जाएंगी. Write down that shear stress. What is the meaning of shear? Tangential. Tangential में ये चीज है देखना। होल्ड पर ये ब्लॉक देखना जरा। अगर आप फोर्स ऐसा लगाओगे क्रॉस सेक्शनल एरिया से, अगर फोर्स ऐसे लगाओगे तो दैट विल बी कॉल्ड व्हाट? लॉन्गिट्यूडिनल। लेकिन अगर आप फोर्स ऐसे लगाओगे then that will be called what? Shear or tangential. What is shear? F upon A. सुनना, सपोज ये होता कितना, कितने लोगों को समझ में आता है? F upon A dash will become longitudinal. F upon A dash will become what? A dash के परपेंडिकुलर है ना ये, इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, ये हमने कर लिया। किस सरफेस के लिए ये टेंजेंशियल फोर्स है? A dash और A? A. Therefore in shear we get F upon A. कितने लोग फील कर पाते हैं कि इस तरह की बॉडी अंडर दिस फोर्स will take this shape, ऐसे डिफॉर्म, यहां से यहां तक कितना मूव कर गई? And what is this height? अभी तक क्या हो रहा था लॉन्गिट्यूडिनल में? डेल्टा एन एंड एल दोनों का डायरेक्शन क्या था? सेम। लेकिन इस बार किसकी बात हो रही है? टेंजेंशियल। डिस्प्लेसमेंट कहां होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओरिजिनल लेंथ क्या है तुम्हारी? एल। जब हम बात करेंगे किस तरह के स्ट्रेन की? shear, that shear will be what? Tangential change divided by L. समझ में आया? लेकिन ये गंदा दिख रहा है, तो बोला इसकी जगह इससे बात करो, ये अच्छा आदमी, इसको लेकर आ गए हम लोग थीटा।
क्या आपको दिख रहा है कि tan of theta is delta L divided by what is tan theta? Perpendicular divided by now. क्या आपने ऐसा सुना है कि अगर एंगल बहुत छोटा हो तो tan can be approximated with theta? नहीं सुना है? tan zero क्या होता है? Zero. इधर if theta is very शायद कई बार ऐसा सुनाया होगा, बताया होगा कहीं मैंने, sin theta can be approximated with cos theta can be approximated with tan theta is what? Sin upon sin can be approximated with and cos is tan theta becomes what? Theta, not zero, theta. For example, here, what is tan 0? 0. What is cos 0? 1. What is sin 0? हमेशा नहीं, केवल कब? ऐसा नहीं कि tan 30 is 30, tan 45 45. No. For small angles, what is tan of 1 degree? 1. नहीं. It's not in degrees. Theta should be in radians. अगर आपने tan of 1 degree 1 कर दिया तो 1 डिग्री 45 डिग्री हो गया। tan किसका 1 होता है? 45 का। हमने प्रूव कर दिया 1 डिग्री 45 डिग्री, 90 डिग्री इज 2 डिग्री। ठंड बढ़ रही होगी 2 डिग्री 3 डिग्री की, उसमें दिमाग श्रिंक हो जाता है। बल्ब इधर लॉजिक क्या चलेगा, ध्यान रखना, दिस इज वैलिड ओनली इफ थीटा इज व्हाट? स्मॉल। थीटा शुड बी इन व्हाट? रेडियंस। यहां पर tan of 1 degree लिख लेना कहीं पे भाई, is not 1 degree, ये मत कराना। tan of 1 degree कितने लोगों को समझ में आता है? ये होता है what is 1 degree in radian? 1 into pi upon, this is approximately what? 1 into pi upon, what's the value of pi? 3 point, check कर लेना, 3.14 upon 180, कैलकुलेटर पे चेक करना, tan of 1 degree is approximately ये आ रहा होगा। मत कर भरोसा रख ले, अभी घर पे आके करना, भरोसा रख ले। tan x is x minus x cube on factorial से आता है। अभी के लिए का shear strain and therefore is in diagonal form represented by what? theta, क्योंकि थीटा के फॉर्म में चीजों को फील करना अच्छा है। इधर ये कॉपी है, हमने इस कॉपी को इधर से, अभी एज वर्टिकल थी, वर्टिकल ओरिएंटेशन, लास्ट क्लास में बताया था शायद मैंने, ऐसा अगर फोर्स ऐसे आ रहा है लॉन्गिट्यूडनल, फोर्स ऐसा आया तो ये जो डिफॉर्म हुआ, हम कॉपी लेके नहीं चलते, कॉपी तो अच्छा खासा क्या हो जाएगी? डिफॉर्म। कॉपी के लिए बात नहीं हो रही है, बात इसके लिए हो रही है। डस्टर ये एंड पकड़ा और इसको मैंने पुश किया, क्या आपको दिखा है? थोड़ा सा इधर चला गया, हाँ मुझे नहीं दिखा, आपको दिखा होगा शायद, पता नहीं कैसे दिखा, नहीं दिखा, इसी को क्या बोलते हैं? very small and therefore that thing will be what? theta, क्योंकि इधर इधर देखना, ये थोड़ी देर के लिए एज इतनी है, ये अगर इधर जाएगा तो ये डेल्टा एल को फील करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, but it's easier to find small angle between two things. एंगल फाइंड करना क्या हो जाएगा? इजी। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। आपसे बोला गया, देखना इधर, ये रॉड यहां पर थी और फिर ये यहां पहुंच गई, तो ये डिस्प्लेसमेंट फिजिकल था। एंगल फाइंड करने के लिए क्या किया? एक आदमी ने लाइन को आगे बढ़ाया, लाइन को आगे बढ़ाया, यहां जाकर हमने क्या मेजर कर लिया? थीटा। It's easier to go for theta than to dl or delta l। इसलिए shear में हम लोग किस तरह के स्ट्रेन की बात करते हैं? टेंजेंशियल। राइट ऑन दिस फास्ट।
ये मैथ्स का जो इंफॉर्मेशन है एक साथ साइड में दिस, उसी के साथ ये निकल जाए. This is not the correct way, this is the correct thing. And is valid only if angles are small. Write down this. In shear stress, F should be tangential to area A. In shear stress, F should be tangential to area A. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में कहानी क्या बनकर आई थी? जनता इधर लॉन्गिट्यूडनल में कहानी क्या बनकर आई थी? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वो रेशियो क्या बना था? कांस्टेंट. एंड दैट रेशियो वाज कॉल्ड व्हाट? यंग्स मॉड्यूलस. यहां पर जो मॉड्यूलस है दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. कैन यू रिलेट दिस थिंग विद दिस थिंग? जितना ज्यादा रिजिड होगा उतना डिफॉर्म करना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट. मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज represented by this symbol. This is not called n, this is called eta. What is eta? Modulus of rigidity, shear stress divided by what? Shear strain. And shear strain is what? Eta. Shear में क्या लिखनी कहानी आपको याद है? Put on this. Modulus of rigidity in the last 2 minutes. This is done. Write down bulk modulus. Bulk modulus. किस तरह की चीजों के लिए बताया था मैंने बल्क? जहां पर हमारे लिए फोर्स का मतलब नहीं रह जाता. क्या आपको फील होता है कि इधर मैं इस रॉड को अगर ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो यहां प्रेशर होगा, यहां नहीं. लेकिन अगर आप एक बलून लें और उस बलून को when you place the balloon in the presence of atmosphere from all sides the balloon is being pushed. केवल एक जगह फोर्स लग रहा है क्या? नहीं, हर जगह पर. हर जगह मतलब the thing is now present all over the surface in 3D in its volume and therefore we go for what? Bulk. In bulk modulus bulk modulus is represented by B. Straight away नहीं चलते हैं. टाइम सेव कर लेते क्योंकि एक ही ऐसी चीजें हैं. यहां पर क्या मेंशन करते हो आप लोग? स्ट्रेस. Which one? Bulk. डिनोमिनेटर में क्या रहता है बॉस? Which one? Bulk. Can you relate this? That bulk strain will be delta V upon. आपने एक बलून एक चैम्बर में रखा and you can increase and decrease pressure of that chamber. If you try to create a vacuum around this balloon, क्या फील कर पा रहे हो? इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा. और अगर आप बाहर का प्रेशर बढ़ा दो तो बलून का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? चेंज. स्ट्रेन विल बी व्हाट? डेल्टा V अपॉन स्ट्रेस. कौन? स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? F अपॉन. लेकिन F अपॉन A तो कहां पर वैलिड है?
लॉन्गिट्यूडनल एंड shear में बलून के लिए F अपॉन A की जगह हम लोग किसे यूज करेंगे? P. P for not P but what? इधर थर्मोडायनेमिक्स हर आदमी ने देखा हुआ है। आपको पता है कि जब प्रेशर P है तो वॉल्यूम कितना है? आपने प्रेशर को कितना चेंज किया, उससे वॉल्यूम क्या हो गया तेरा? What is the change in pressure? वो यहाँ पर स्ट्रेस का मतलब तुमने क्या एडिशनल लगाया? डेल्टा पी। इस डेल्टा पी ने क्या कर दिया? दिस मच चेंज। दिस मच इज क्लियर? बोर्ड पर डेल्टा एंड ऑल चलता है, लेकिन अच्छा ही है dp अपॉन डिवाइडेड बाय विद अ नेगेटिव साइन। फुल टेल मी व्हाट इज नेगेटिव साइन? टाइम नहीं, मैं बताता हूं। बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉड्यूलस, these are constant positive numbers। कैसे नंबर है? पॉजिटिव। तो बल्क मॉड्यूलस भी कैसी चीज है? पॉजिटिव। क्या आपको फील होता है कि अगर एक बलून का चारों तरफ से लगने वाला प्रेशर हमने क्या किया? अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो डीपी कैसा नंबर है? पॉजिटिव। लेकिन अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा तो डीवी कैसा नंबर है? नेगेटिव। लेकिन ये कैसा नंबर है? तो आपने पहले से क्या लगा रखा है? नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज व्हाट? अब तू प्रेशर कम कर, अगर प्रेशर डिक्रीज करोगे तो फिर ये डीवी क्या बन जाएगा? प्रेशर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, ये क्या बनेगा? पॉजिटिव। लेकिन ये क्या है? नेगेटिव ऑफ नेगेटिव। ये बल्क मॉड्यूलस नेगेटिव नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव लिखा हुआ है। समझ में आ गया है? डेल्टा वर्जन क्या होता है? डेल्टा मतलब होता है मैग्नीट्यूड। डेल्टा का मतलब क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड। इसलिए पूरी चीज क्या थी? पॉजिटिव। लेकिन डिफरेंशियल फॉर्म वाले बड़े आसान होते हैं। क्यों आसान होते हैं? आई टेक वन मोर मिनट। इधर कितने लोगों को दिख रहा है या कितने लोग आंसर दे पाएंगे स्कूल लेवल के 1 नंबर के क्वेश्चन का? सुनते ही लेना। बल्क मॉड्यूलस फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस। बल्क मॉड्यूलस फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है अंकल? Bulk modulus is infinite. It's not zero. It's what? Bulk modulus for an isobaric. अब ये सही है। आइसोबारिक में प्रेशर है? हाँ है। लेकिन प्रेशर का चेंज क्या है? डेल्टा बी, डीवी। बल्क मॉड्यूलस क्या हो गया? एक टाइम के स्टेट में। आपका होमवर्क है बल्क मॉड्यूलस फॉर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। इतनी कहानी क्लियर? राइट डाउन दीस लास्ट 2 पॉइंट्स। बल्क मॉड्यूलस फॉर isobaric, bulk modulus for isobaric is 0 as delta P is 0 and bulk modulus for isochoric is infinite. Bulk modulus for isochoric is infinite as delta V is 0. Okay, next slide.